Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Leadership and Team Management. And today we'll be starting our lecture number 22. As you know that this course, Leadership and Team Management, is very important because today's organizations, in today's dynamic environment, it is becoming more and more important to focus on all those inputs which can create a difference in efficiency and effectiveness. And based on the experience, based on the practical aspects, we have figured out that yes, all inputs are important, but the most important input which any organization can have, any team can have, is the human resource. And if we are understanding this aspect, this important input of any organization, that will help us to manage this important input, that important resource of that particular organization. Based on this aspect of the subject, this human resource is becoming more and more important. Because they are becoming more and more important, so people are putting extra effort to understand this aspect of the human resource, or human resource as a resource of any organization can have. तो इसीलिए आप देखते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को समझा जाता है. We have a separate subject, organization behavior. Then we have another subject, human resource management. Itself in an organization, this section, this department has become very important, and rather at the level of strategic management level. तो उसी नुक्ता नज़र के तहत this leadership and team management को भी हम उसी तरह देख रहे हैं. What I started basically, I started focusing the first part of the subject, the leadership. And after going through all those theoretical, historical backgrounds, and उसकी जो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए लीडर फॉलोअर सिचुएशन को, वी शिफ्टेड टुवर्ड एप्लीकेशन मोड, जहां पे पावर का रोल आता है, एंड पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस को समझा गया, और लीडर का पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है उस चीज को अंडरस्टैंड किया गया. ड्यूरिंग अवर लास्ट लेक्चर आई स्टार्टेड अनदर एस्पेक्ट, अनदर कॉन्सेप्ट, द मोटिवेशन. That what motivation is basically. And we discussed during last lecture that there is a set of forces that cause people to behave in certain ways. And that is becoming important. Why? Because all managers, leaders, the kaptan, or whatever you name them, they want to maximize the desired behavior of their followers, their workers, their subordinates, their team members. Not only this, they also want to minimize the undesirable behavior of their followers, their colleagues, their subordinates, their team members. So that was the topic we started during our last lecture. That was lecture number 21. So dear students, why this motivation is important? Because if we are looking at the performance as a whole, performance, we know that performance is the function of abilities, opportunities, and motivations. Of course, abilities, knowledge, and skill people can learn. उसकी opportunities को भी किया जा सकता है, लेकिन motivation कहाँ से आती है? There are three factors: individual level पे, organizational level पे, और leader का उसमें क्या role है उन चीजों को मोटिवेट करने के लिए, and to understand them. So we started discussing those things during our last lecture. And we also figured out that we are all different. To varying degree and in particular ways, individual we are different. While we are different, our attitude, our perception, our behavior, and how to perceive those stimuli from the environment in the organization, which can act as motivator, can be different depending on the people.
और उसी सिलसिले में फिर हमने मुख्तलिफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किए. So ladies and gentlemen, I explained to you different theories like Maslow's hierarchy of need theory, अल्फ्रेड की जो ERG थ्योरी थी, then two factor theory and so on. इन सारी जो थ्योरीज के अंदर जो हमने कॉमनैलिटीज देखी, कॉमन चीजें देखी, वो ये थी कि बेसिकली ईच पर्सन, ईच थ्योरी इज टॉकिंग द सेम थिंग्स. और उसके लिए I told you to you that we should take this Maslow hierarchy of need as a more applicable, more practical theory. और इसको समझ जाएं अगर, तो हमें लोगों के वो जो नीड्स हैं, वो जो मोटिव्स का काम करते हैं, उनको समझना आसान हो जाता है. उसमें हमने 5 स्टेजेस को, इफ यू रिमेंबर, वी डिस्कस. लेकिन जब मैंने आपको चारों थ्योरीज को आपके साथ कंपेयर किया, तो वी हैव फिगर आउट कि ये सारी चीज एक ही बात करते हैं वो सारे लोग. मुख्तलिफ अंदाज है, मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ उन्होंने नाम दे दिए उसको, बट बेसिकली दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट द सेम नीड्स, सेम काइंड ऑफ बेसिस जो कोई भी किसी भी इंसान के अंदर मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं. एंड अगेन रिमेंबर, एक ही किस्म का नीड के लिए वो जो मोटिव्स बनते हैं डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. और डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द नीड, लो लेवल नीड्स भी कहा जाता है, हाई लेवल नीड्स भी होती हैं, तो उसके मुताबिक फिर आगे देखा जाता है कि इन नीड को क्या चीज सेटिस्फाई कर सकती है. राइट? देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू द इक्विटी थ्योरी क्या होती है, एंड देन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रीइंफोर्समेंट थ्योरी. इन चीजों को समझा ताकि आपको समझ आ सके कि ये मोटिवेशन चीज क्या है और हाउ इट इज अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल, एंड व्हाट इज फॉर अस एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, दैट हाउ लीडर कैन यूज दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ये सब्जेक्ट का नॉलेज होना उसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए किस तरह फायदेमंद है कि मैं अपने टीम के अंदर वो मोटिवेशन क्रिएट कर सकूं, मैं अपने फॉलोअर्स के अंदर वो मोटिव्स करा सकूं, उनके अंदर ला सकूं, जिसकी वजह से दे शुड ऑल वर्क लाइक ए टीम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ठीक है? सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लेट्स मूव फर्दर एंड सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, हाउ इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप. तो उसको थोड़ा सा अप्लाइड साइड में आज देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अगेन 3 कॉन्सेप्ट. तो दीज थ्योरीज, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड विच वी हैव कवर्ड, तो इसको अगर मोटिवेशन को हम अप्लाई साइड पे देखते हैं तो वी कैन सी 3 अप्रोचेस, 3 लेवल ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मोटिवेशंस. वन कैन बी इंडिविजुअल अप्रोच, अनदर कैन बी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, और थर्ड कैन बी द मैनेजरियल अप्रोच जो लीडर का रोल होता है. सही है? So ladies and gentlemen, while talking about individual approach, one can focus that basically those texts or those motivators as in individual के how they are acting, they are affecting individual कि वो उस motives को, उन stimuli को लेके उसके अंदर क्या चीजें हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं, क्या चीजें हैं जो उसको डीमोटिवेट करती हैं. तो ये उसी वक्त समझ आती है जब हमें बेसिक बैकग्राउंड समझ आ जाए. ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, जॉब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लेवल पे बात करते हैं तो एम्फेसाइज इस पे दिया जाता है कि जॉब डिजाइन किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव्स कि लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से जाना पसंद करते हैं कि वो जो जॉब है वो उनकी के लिए अट्रैक्शन है उसके अंदर, उसके इसमें उनके लिए सेटिस्फैक्शन है. ठीक है? और जनरल ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट होती है, दैट आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो वो जो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम इस तरह की चीजों को सामने रख के चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और इन जो लीडर टाइप है, या लीडर्स हैं या मैनेजर्स हैं, उसके लेवल पे हम क्या देख सकते हैं कि वो जो बिहेवियर है उनका, उनके जो एटीट्यूड हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउ दे आर इफेक्टिंग द इंडिविजुअल्स, द फॉलोअर्स एंड एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन अबाउट अचीविंग द गोल्स. ठीक है?
So I hope you are understanding the concept. You are with me, and we are together trying to understand this important aspect of this subject. And then let's try to relate these motivational theories, theoretical background to application aspect. ठीक है, तो बात करते हैं फिर उन नीड थ्योरीज की. तो बेसिक आइडिया क्या है? Individuals have certain needs that when unsatisfied will result in motivation. और उन जब वो मोटिव बनते हैं तो उसके बेस पे उनके बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स. तो जैसे मैंने आपसे कहा, इसमें हमने 4 बेसिक थ्योरीज आपके साथ शेयर की थी. मैस्लोस की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो 2 फैक्टर की थी, अल्फ्रेड की ARG थ्योरी थी, और मैकलेलन की थ्योरी ऑफ नीड थी, जिसमें नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अफिलिएशन, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन एप्लीकेशन पार्ट एंड लेट्स ट्राई टू डिस्कस बेसिक application part of this theoretical background. So let's talk first, what factor diminish motivation in the workplace. Now we have to see all those, apply those theoretical part on real workplace environment. क्या चीजें हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं अपनी वर्क एनवायरनमेंट में? ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद यू. आप एक स्टूडेंट हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने जाते हैं, क्या चीजें हैं जो वहां आपको डिमोटिवेट करती हैं? आप कह सकते हैं कि वहां की इन्वायरमेंट, ठीक है, वहां का वो जो सिस्टम है, वहां की जो टास्क आपको दिए जाते हैं, जो एक्टिविटी आपसे करवाई दी जाती है, वो आपको अट्रैक्ट नहीं करते, एक्साइट नहीं करते, तो इसलिए आप डिमोटिवेट होते हैं. द सेम वे when we're talking about an organization, when we're talking about a work environment, so there are certain things which can diminish, which can reduce the motivation of people working there, that there can be the followers, they can be leaders, they can be whatever, right? So it will start, let's start number 1, ये आप स्लाइड पे भी देखेंगे, meaningless task. अगर तो जो काम आपको है दिया जा रहा है, जो टास्क आपसे दिया जा रहा है, उसमें आप एक्साइट नहीं होते, they are meaningless to you, then definitely there will be no motive for you to excel, to exert, तो मोटिवेशन फैक्टर कम हो जाएगा. इसी तरह रेड टेपिज्म होती है हमारे यहाँ अदारों के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ देखते हैं कि हर चीज एक चैनल के जरिए चलती है. रेड टेपिज्म है, अगले के इख्तियार में है, जो मर्जी रोक ले. वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, एम्पावरमेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है. सो दोज थिंग्स कैन आल्सो act as demotivating factor, or they can act to reduce the motivation factor in the organizations. Similarly, ladies and gentlemen, lack of clear goals, ये भी एक रीजन हो सकता है कि जो मोटिवेशन को खत्म कर दे आपके अंदर. जब गोल ही नहीं पता, जब डायरेक्शन ही नहीं मालूम, तो नेचुरली एक्साइटमेंट विल नॉट बी देयर, और वो आपकी डिमोटिवेटिंग का इफेक्ट करेगा. और उसके अलावा आपकी जो मोटिवेशन फैक्टर्स हैं वो आस्ता आस्ता कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे. फेलियर टू सेट प्रायोरिटीज, अनदर एस्पेक्ट. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ये मैकेनिज्म है कि प्रायोरिटीज का ही नहीं पता, यू नोबडी नो हु इज द बॉस, नोबडी नो वेयर इज वी आर हेडिंग टू, देन समथिंग इज रॉन्ग देयर, एंड दैट कैन इफेक्ट ऑन द मोटिवेशन ऑफ द पीपल, एंड दैट कैन अल्टीमेटली डिमिनिश or reduce the motivations in the workplace. Distractions, overcommitment, information overloaded, these are also few other factors which can have diminishing effect or reducing effect of the motivation at workplace. I don't want to go detail in each aspect, so उसमें ही एक ही स्लाइड में सारा वक्त गुजर जाएगा. लेकिन ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको बार बार मुख्तलिफ सिचुएशंस पे, मुख्तलिफ जगहों पे आपको इन चीजों से वास्ता पड़ता है. तो इसलिए I'll take it कि you already understand those things, और हम आगे चलते जाते हैं. No positive feedback. Again, we have a performance evaluation system in organizations. We do have the performance review होते हैं. तो this feedback mechanism very important in the organization. If there is no positive feedback, so how can you differentiate it? I'm doing good job, person B is not doing good job, person C is doing the excellent job. So unless there is a proper feedback system, तो वो चीज उजागर नहीं होती, और जब नहीं होती तो उसके अंदर मोटिवेशन भी नहीं रहती. फिर एवरीबॉडी नो दैट यार काम करो ना करो, वी आर जस्ट स्पेंडिंग डेज. तो ये भी इफेक्ट करती है. अगर प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव व्हाटएवर फीडबैक का मैकेनिज्म नहीं है तो मोटिवेशन नहीं रहेगी. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, दैट इज द रीजन पीपल कैन नॉट मेक डिसीजन. एम्पावरमेंट नहीं है,
डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं है, तो ये भी इफेक्ट करेगी मोटिवेशन फैक्टर्स को एट द वर्क प्लेस. अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द डायरेक्शन, सडन चेंजेस जो आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, depending on the few people's activities, tomorrow they will come and they will show, we have to go this direction. Yesterday they were telling you something different. Day after tomorrow, you don't know what is going to happen. So ये uncertainty is also going to cause demotivation in the organization, और वो जो आपका motivation factor है organization के अंदर होता है, वो आस्ता आस्ता खत्म हो जाएगा. Lack of recognitions, absence of humor even, वो जो recognize करना होता है, appreciation होती है, that is must. And this is again human behavior, you know that, कि जो भी हर इंसान को चाहिए कि उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाए, उसको रिवार्ड मिले उसका. अगर ये चीजें मिस हो जाएं तो फिर उसका वो जो मोटिवेशन फैक्टर होता है वो खत्म हो जाता है. एब्सेंस ऑफ ह्यूमर मीन कि एक तो होता है ना कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आजकल के वक्त में, द काइंड ऑफ प्रेशर अंडर प्रेशर विच प्रेशर वी आर वर्किंग, द काइंड ऑफ स्ट्रेस अंडर विच आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग, तो थोड़ा बहुत फन पार्ट, थोड़ा बहुत ह्यूमर का एस्पेक्ट वहां पे होना चाहिए, क्योंकि द मोर यू कैन हैव द ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, द बेटर इट विल बी. पीपल विल फ्रीली टॉक विद यू, दे विल कम अप विद आइडियाज, दे कैन गिव यू आइडियाज विच कैन बी ऑफ $1 million वर्थ. लेकिन अगर आपने डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखा हुआ है अपने दरमियान और अपने फॉलोअर्स के दरमियान, अपने सबॉर्डिनेट्स के दरमियान, फिर वो एक फॉर्मेलिटीज आ जाती है. तो पीपल आर केयरफुल, स्पेशली when your behavior is kind of little bit bully type, तो फिर क्या होता है कि लोगों के पास अच्छे आइडियाज भी होते हैं, तो they will not come to you because they will consider that if we'll go there we'll get a bad response. तो they might have a very good idea but they will not share with you. तो उसके लिए थोड़ा बहुत ह्यूमर का होना, थोड़ा बहुत फन पार्ट, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत आपस में ओपन कम्युनिकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ दिस इज मिसिंग, अगेन वो जो आपकी मोटिवेशन है वो खत्म होती जाएगी आस्ता आस्ता एट वर्क प्लेस. देन अनदर कॉन्सेप्ट इज द माइक्रो मैनेजमेंट थिंग, कि अगर लीडर और मैनेजर छोटी छोटी चीजों को भी खुद मैनेज करना शुरू कर दें तो देन इट इज नॉट वर्किंग, देयर इज नो मोटिवेशन. देन एवरीबॉडी फील कि यार सब कुछ उन्होंने करना, तो हमारा क्या रोल है इसमें. वो जो मैंने आपसे कहा कि लीडर का रोल इज नॉट ओनली टू टेक द फॉलोअर अलोंग बट आल्सो टू क्रिएट मोर लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब तक आप इस माइक्रो मैनेजमेंट से एज ए लीडर नहीं निकलेंगे वो चीजें अचीव नहीं होती और मोटिवेशन फैक्टर खत्म हो जाता है. फेलियर टू डेलीगेट, द सेम थिंग, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, interpersonal conflict is another thing. Yes, in organization little bit conflicts is healthy, and especially if it is on procedure, if it is on policies, that is healthy sign. But जो interpersonal conflict personality base पे होते हैं, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है. इससे अंडर स्ट्रेस लोग चले जाते हैं, फोकस चेंज हो जाता है, एनर्जी ज्यादा इन चीजों पे खर्च होने लगती है बजाय उस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और वो जो मोटिवेशन वाला फैक्टर है वो भी फिर खत्म होना शुरू हो जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. when people know that whatever we'll do nobody cares, so they are not going to put extra effort, they are not going to be the careful. तो वो जो अकाउंटेबिलिटी का ना होना किसी भी इदारे के अंदर, वो भी देखा जाए तो मोटिवेशंस के फैक्टर्स को खत्म करता है एट वर्क प्लेस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दोस सम रिजल्ट्स ऑफ पुअर मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस. अगर जो अभी हमने डिस्कस किए कि क्या वजह है जिसकी वजह से वर्क प्लेस पे आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, अगर ये सिचुएशन आ जाए तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं. वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस पे क्या आपको आउटपुट मिलेगी. सबसे पहली तो आपको देखेंगे कि लोग लेजी हो जाएंगे, दे विल बी लेजी, दे विल बी जस्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. वो तैयारियां लगाने सिर्फ आएंगे, they are not going to contribute something in a big way for the organization. So ultimately who is losing? Yes, organization is losing, but of course you as a leader you are losing. The workers, the followers, they are also losing, and ultimately the society is also losing. So पहला कि laziness आ जाएगी. Failure is going to be the next step, कि आप आस्ता आस्ता फेल होना शुरू हो जाएंगे, अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे. ठीक है, आपकी जो डिलीवरी है वो क्वालिटी की नहीं होगी, तो नेक्स्ट कैन बी द पुअर क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, द रिजल्ट्स और वट एवर यू आर डूइंग प्रोडक्ट और सर्विसेज. ठीक है, देन यू कैन सी रेजिस्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी अवॉइडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी टार्डीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड पीपल विल बी अंडर स्ट्रेस. एंड ड्यू टू स्ट्रेस, एंड यू नो दैट stress is good in beginning but sooner it will become the burden.
इफ द स्ट्रेस इज कंटिन्यू, और जो आपने देखा है कि बेल शेप कर्व बनती है स्ट्रेस की और परफॉर्मेंस की, तो क्या होता है कि अगर स्ट्रेस कंटिन्यू रहे और ज्यादा अरसे तक रहे तो हर इंसान का एक थ्रेशोल्ड लेवल है, और जब वो क्रॉस करता है तो आस्ता आस्ता ये फटीग बनता है, फटीग से फिर बर्नआउट पे जाता है. दैट इज ए क्लिनिकल डिजीज. तो जब लोग बर्नआउट होना शुरू हो जाएंगे, एब्सेंटिज्म ज्यादा हो जाएगी, लोग डीमोरलाइज होते जाना शुरू हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगी, बातों क्योंकि फारग होंगे, लेजी होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो आपस में पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे. फिर उनको अपना वो मकसद, वहां पे रहने का मकसद ही फोत हो जाएगा कि क्यों बस इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आए थे, क्या अचीव करना चाहते थे और कहाँ वो जाना चाहते थे. एब्सेंटिज्म होना शुरू हो जाएगा, लोग मर्जी से आएंगे, मर्जी से जाएंगे, रिजेंटमेंट आएंगी, टर्नओवर रेट हाई हो जाएगा. एंड यू नो व्हाट इज टर्नओवर, राइट? लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना शुरू कर देंगे आपकी. एंड देन अगेन only those people will leave your organization which have still the energy, will still have some motives left, and they will seek some other options and they will go there and make their life. लेकिन वो लोग जो लेजी हो गए हैं, जो बर्नआउट हो चुके हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, they might take it for granted कि यार मुफ्त की लगी हुई है, चले बैठे रहें. तो अल्टीमेटली किसका नुकसान हुआ? सबका, फॉलोअर्स का, लीडर्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, और अगेन सारी सोसाइटी का नुकसान हुआ. डिटैचमेंट हो जाएगी, पीपल विल नॉट केयर, डिस्करेजमेंट आ जाएगी लोगों को, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरऑल ए नेगेटिव कल्चर विल बी क्रिएटेड, which is going to not only destroy the people, destroy their personalities, but ultimately वो ऑर्गेनाइजेशन ही शायद खत्म हो जाए. तो ये वो आउटकम्स हैं, ये वो रिजल्ट्स हैं जो पुअर मोटिवेशन की वजह से होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, this is very important that we should keep motivation alive at the workplace. Otherwise, the consequences we have already discussed. तो दो बड़ी बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब आपके वर्कर्स को, when your followers, when your team member, they believe whatever efforts they will put, it is not going to result in the performance. दूसरी, believe that whatever performance they will give, it will not result any kind of rewards. तो फिर वो मोटिवेशन का सारा आंसर शेक हो जाता है. तो you as a leader, as a manager, have to understand those things कि किस तरह इन चीज़ों को उजागर रखना है, किस तरह इन चीज़ों को अलाइव रखना है, ताकि मोटिवेशन फैक्टर शुड बी देयर और चीज़ें मूव होती जाएं इन द डायरेक्शन वेयर नॉट ओनली इंडिविजुअल आर गेटिंग बेनिफिट, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अचीव देयर goals or objectives. Let's talk about now something. What are those most powerful motivators in our lives? किन की वजह से हम मोटिवेट होते हैं चीजों पे? And again, reference to our workplace. पहले तो हमने बेसिस, theoretical basis पढ़े, अब हम applied side, application देख रहे हैं. What are those some most powerful motivators in our lives as worker, as colleagues, as follower, as leaders? ठीक है, सबसे पहले तो कमिटमेंट है. कमिटमेंट अगर होगी तो वो कमिटमेंट ही इटसेल्फ आपके अंदर मोटिव लाती है कि आप टाइम नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि कुछ आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप ये नहीं देखते कि मेरे इस पे इसका क्या असर होगा. यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क. लाइक यू एज ए स्टूडेंट, अगर आप रात को 12 बजे भी उठ के पढ़ रहे होते हैं तो किस वजह से पढ़ रहे होगे? ना तो आपको टीचर देख रहा होता है, शायद ना आपके पेरेंट्स को मालूम होता है. इसलिए कर रहे होते हैं कि आपकी एक कमिटमेंट है अपने उस काज के जरिए, उस काज के लिए कि आप अचीव करना चाहते हैं अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी क्वालिफिकेशन. सो दैट कमिटमेंट इज इटसेल्फ वर्किंग एज बिग मोटिवेटर्स. नंबर 2, ऑफ कोर्स द फाइनेंशियल मनी, पैसे के लिए. ठीक है ना, पैसा बहुत जरूरी चीज है. आपकी हर जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत आती है. भले आप कपड़ों की बात करते हैं, बड़े रोटी की बात करते हैं, भले शेल्टर की बात करते हैं, लेजर की बात करते हैं, तो पैसा एक जरूरी एसेंशियल नीड बन चुका है. ठीक है ना. कल हमारी सोसाइटी को डिसाइड करती है कि हम पैसे की जगह उसका कोई और नाम देना चाहते हैं, तो वो चीज आपके लिए जो है बेसिक नीड, बेसिक मोटिवेटर बन जाएगा, जिसके बदले में आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं. राइट. सो मनी इज अनदर मोटिवेटर एंड इन ए बिग वे मोटिवेटर इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दिस इज नॉट द ओनली मोटिवेटिंग थिंग, और दिस इज नॉट गोइंग टू बी द ओनली मोटिवेटर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मोटिवेशन
आपकी उजागर या जिंदा रखता है. ठीक है. देन इज दी मीनिंग्स, वट एवर यूर डूइंग, इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या मतलब निकलता है, इससे आपको क्या फायदा हो रहा है. देन रिकग्निशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं, उन्होंने एक तस्वीर लगाई होती है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. अब क्या है, इसको देखा जाए फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए, वैसे इसको देखा जाए तो एक उसकी तस्वीर एक फ्रेम करके आप लगा देते हैं. बट यू नो हाउ मच इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, एंड इट क्रिएट कंपटीशन अमंग दोज पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कि एवरीबॉडी वांट कि यार मेरी तस्वीर लगनी चाहिए एज ए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ. या आपको अवार्ड मिलता है, आप पोजीशन लेते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या होता है, वो गोल्ड मेडल मिलता है. दुनियावी लिहाज से देखा जाए, फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए, उसकी क्या हुआ था, एक सर्टिफिकेट आपको एक्नॉलेजमेंट का मिलता है. ओके, बट सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज थिंग. आप उसको प्राइडली प्रेजेंट करते हो जब कभी आप कहीं सीवी देते हो, जब कभी कहीं आप बताते हो तो आप कहते हो कि यस आई हैव अचीव्ड द फर्स्ट पोजीशन, आई अर्न दिस मेडल, आई हैव अर्न दिस रिकग्निशन. सो दैट इटसेल्फ इज अ बिग मोटिवेटर फॉर एनी पर्सन हु इज वर्किंग और हु इज स्टडिंग व्हाटएवर ही और शी इज डूइंग. ठीक है. इस तरह जो आपकी इफेक्शन है, लव है, जो आपको प्यार मिलता है आपके साथियों से, आपके कोलीग से, आपके बॉस से, आपके सबॉर्डिनेट से, ये इटसेल्फ इज अ बिग मोटिवेटर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो लव कॉन्सेप्ट है, ये जो घर से शुरू होता है, माँ का प्यार, बच्चों का प्यार, कोलीग्स का प्यार, फ्रेंड्स का आपस में जो इफेक्शन है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में आप देखते हो, ये भी एक आपके लिए मोटिवेटर का काम करता है. पार्टिसिपेशन, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग यू चांस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, इन पॉलिसी मेकिंग, itself it is acting as motivators. Emotions जो आपके अंदर, इमोशन चीजें भी एक मोटिवेटर का काम करती हैं. रिकग्निशन और एप्रिसिएशन, और ये चीज आपसे बता चुका हूं. हेट, ये आप कहेंगे ये कैसे मोटिवेटर हो सकता है. कई दफा आप वो जो हेट के अंदर, हेट भी एक किस्म का आपके अंदर मोटिवेटर के तौर पे काम करता है. वो हेट जो होती है उसकी वजह से आप बड़े से बड़ा काम कर जाते हो. होता है ना, आप जेलस फील करते हो किसी से, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप किसी का दुश्मन भी होते हैं आपके, तो वो जो हेट का आंसर है वो भी मोटिवेटर का काम करते हैं. रिलीजन्स जो बिलीव्स हैं आपके, वो जो वैल्यू सिस्टम है, नाम्स हैं, वो भी आपके अंदर मोटिवेटर का काम करते हैं. क्यों लोग रिलीजन, हम जिस तरह मुसलमान हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जितना मर्जी जरूरी काम आप छोड़ के नमाज की तरफ जाते हो, आप हज करते हो, आप ज़कात देते हो, आप बाकी इस तरह के जो आपके रिलीजन के अपने हमारे बिलीव्स हैं, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिले हम उसको पूरा करते हैं. अगर देखा जाए तो वक्ती तौर पे लाइक पीपल डू सोशल सर्विस. व्हाई दे डू सोशल सर्विस? अब्दुल सत्तार ईदी साहब क्यों इतनी सारी अपनी जिंदगी लगा रहे हैं खिदमत खल्क में? यस, देयर इज अ रीजन. वो मुफ्त नहीं कर रहे, वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, वो अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं. तो देयर इज अ काज देयर, द मोटिव इज देयर. इसी तरह हज करने जाते हो आप, कितनी मुश्किलें लोग बर्दाश्त करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, बट वो रिलीजन बिलीव है जिसकी वजह से हमारे अंदर एक मोटिव होता है. हर बंदे की दुआ होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे भी उस जगह लेके जाए. तो सी दोज थिंग्स योर रिलीजन बिलीव्स, दे आर आल्सो एक्टिंग एज मोटिवेटर्स. आपको रिलीजन में बताया गया आपने सच बोलना है, इंसाफ करना है, आपने खिदमत खल्क करनी है, तो ये सारी चीजें मोटिवेटर के तौर पे काम करती है. सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कल्चर नॉर्म्स जो होते हैं, चांसेस टू मेक ए डिफरेंस, इसी तरह इंडिपेंडेंस, अपॉर्चुनिटी टू सर्व, ड्यूटी समझते हैं आप इसको, हैबिट समझते अपनी बन जाती है. तो ये सारी चीजें दे आर एक्टिंग एज पावरफुल मोटिवेटर्स इन आवर लाइफ्स, और ये चीजें भी हमें, मुझे और आपको समझनी है. उसके अलावा परसीव्ड नीड ऑफ द चेंज, अगर आप समझते हैं कि नहीं यार, अगर मैंने अपने अदारे के लिए उसको बेहतर बनाना तो मुझे ये चीज चेंज करनी है, अगर ये आपका माइंड सेट बैठ जाए तो वो चीज आपके लिए भी एक मोटिवेटर का काम करती है, और वो मोटिवेशन की वजह से देन यू क्रिएट ए चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप नाउ यू आर विद मी and you're understanding this application of all those motivation theories we discussed in previous lecture. So let's talk about how can you motivate yourself. ये तो सारे हमने देख लिया कि क्या चीजें हैं जो वर्क प्लेस पे डिमिनिश करती हैं, रिड्यूस करती हैं मोटिवेशंस को,
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो बिग मोटिवेटर्स का काम करती हैं. लेट्स ट्राई टू फोकस नाउ इंडिविजुअल्स कि किस तरह अपने आप को आपने मोटिव करना है और किस तरह दूसरों को मोटिवेट करना है. ठीक है. नंबर 1, हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ. सो उसके लिए जरूरी है कि यू नीड टू स्टिक विद योर पैशन. पैशंस क्या है आपके. लेट्स सी, मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है, मेरा शुरू से पैशन रहा है कि आई शुड टीच. तो वो चीज मेरे अंदर जिंदा रहती है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत अपना लेवल पे स्ट्राइव करता रहता हूं कि मैं किस तरह अच्छे से अच्छा ये काम करने की कोशिश करूं. एंड यू नीड टू शेयर योर इंथुजियाज्म जो आपके अंदर है, इसको शेयर करना चाहिए. उससे भी एनर्जी बिल्ड होती है और आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं. इसी तरह कोशिश ये करनी चाहिए कि उन लोगों की कंपनी में रहा जाए जो हाई अचीवर है, जिन्होंने जिंदगी के अंदर को बड़े बड़े काम किए हैं. सो वो भी आपके अंदर एक मोटिवेशन लाता है कि देखो यार, अगर ये एक बंदा इस लेवल पे जा सकता है, अगर ये क्वालिफिकेशन इस तरह इंप्रूव कर सकता है, अगर ये अपनी जिंदगी में ये चीज अचीव कर सकता है, तो व्हाई नॉट आई. एंड दोज सिटिंग, वो जो होता है ना, हम जो बिहेवियर साइंस पढ़ते हैं तो रेफरेंस ग्रुप होता है कि विच रेफरेंस ग्रुप यू बिलोंग, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर बिहेवियर. इवन बाइंग बिहेवियर, दी स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों के साथ उठना बैठना कोशिश करें जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर को अचीव किया है, so that you should also get that kind of heat. जैसे कहते हैं ना कि आप लोग आग के पास बैठोगे तो कपड़े जलाओगे, कपड़े नहीं जलाया तो कुछ सेक तो पहुंचेगा ना. ठीक है. तो when you are sitting with people, when you have interaction with those people who are high achiever, who have done something good for the nation, for the people, for the organization, for themselves, तो आपका उनके साथ उठना बैठना भी आपके लिए फायदेमंद है. एक तो ये हुआ कि वैसा शायद आप ना कर सकें या उससे अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा और आपके अंदर वो चीज मोटिवेशन के तौर पे निकलेगी. ठीक है. गो विद योर स्ट्रेंथ्स. यू नीड टू डू योर ब्रदर SWOT एनालिसिस. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेसेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑल दोज थिंग. और बेस्ड ऑन दोज थिंग अपनी उन स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए, अपनी लिस्ट बनाना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी बनानी चाहिए काम को, और वो सामने रखने चाहिए कि मैंने क्या क्या करना है. और उमूमन लोग आप देखते हो, जब आप पढ़ते भी हो, जब कभी एग्जाम आपके आते हैं तो अपनी डेट शीट को आप बिल्कुल सामने लगाते हो जहां सो के उठते हो, ताकि आपकी नजर वहां पड़े. घर में 3-4 जगह बच्चे, मेरा उमूमन घर में हम देखते हैं बच्चे बच्चियां जब उनके एग्जाम आते हैं तो अपनी डेट शीट को मुख्तलिफ जगहों पे पेस्ट कर देते हैं. अपने उस टेबल के सामने भी, अपने बेड के पास भी लगा देते हैं, अपनी जो क्लोजेट होती है अलमारी उसके साथ भी लगा देते हैं. व्हाई? बिकॉज दे रिमाइंड, सीइंग दोज थिंग एवरी डे, इट कैन रिमाइंड देम कि लुक, यू नीड टू बी एट योर टोस. ये आपके एग्जाम आ रहे हैं, ये फलाना इम्तिहान है. ठीक है. द सेम वे यू नीड टू मेक द लिस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज, थिंग्स टू डू, राइट, सो दैट यू शुड बी फोकस. सो अगला पॉइंट भी वही है कि हाउ कैन यू मोटिवेट योर सेल्फ. यू नीड टू स्टे फोकस ऑन द रिजल्ट्स. वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, उनको सामने रखते हुए आपने मूव करना है. एंड लास्ट अगेन नॉट द लीस्ट, कि यू शुड डू समथिंग. आइडियल नहीं होना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए जो आपके अंदर इस मोटिवेशन को जिंदा रखेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग. हाउ कैन यू मोटिवेट अदर्स एज ए लीडर, एज ए कोलीग? हाउ कैन यू मोटिवेट अदर्स? नंबर 1, अगेन यू नीड टू बी एसोसिएटेड विद हाईली मोटिवेटेड पीपल. जिस बंदे को आप मोटिवेट करना चाहते हैं उसको उस ग्रुप के साथ अटैच कर दें जो हाईली मोटिवेटेड है. तो उससे क्या होगा कि वो भी सीखेगा. ठीक है. सेट ए मेजरेबल गोल. हर एक को एक टारगेट देंगे आप, उससे क्या होगा कि उनके ऊपर प्रेशर होगा और उनके अंदर एक मोटिवेशन बनेगी. मेक ए कंपेलिंग केस फॉर देम. उनको आपने कन्विंस करना है, उनको आपने एज ए कोच काम उनके साथ करना है कि उसको कंपेल करें कि वो उसके लिए एफर्ट करें. एंड यू नीड टू यूज योर इमोशनल टेम्पटेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किस तरह आप अपने साथियों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह आप अपने कोलीग्स को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करते हैं. लीडर क्या करता है बेसिकली, वो जो इमोशनल टॉक होती है वो किस लिए होती है? ताकि वो आपके अंदर थ्रस्ट पैदा करे, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करे. ठीक है. सेट ए फायर एंड कीप इट गोइंग. सेट ए फायर का मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर अपने फॉलोअर्स, अपने कोलीग को इतना मोटिवेट करना है कि उनके अंदर एक आग लग जाए, और उस आग को फिर जलते रहना चाहिए ताकि उनके अंदर वो मोटिवेशन कायम रहे. एंड सेम टाइम यू नीड टू मेक दिस वर्क एज ए फन पार्ट टू. दे से डोंट डू एनीथिंग अनलेस इट इज फन. तो आपने जिंदगी लोगों को अजाब नहीं बनाना,
उसका उसके अंदर फन पार्ट भी होना चाहिए, लेजर टाइम भी रखना चाहिए आपको उसके अंदर, कभी कभी गेट टुगेदर पार्टी छोटी मोटी फन पार्ट को भी मद्देनजर रखना चाहिए, ताकि वो लोग एक रिकूप भी होते रहे आपके फॉलोअर्स, आपके कोलीग, और उनका मोटिवेशन लेवल भी उधर रहे, ठीक है ना। एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन टू देम हाउ टू डू इट, यू नीड टू एक्ट एज ए कोच, यू नीड टू एक्ट एज ए मेंटर अपने फॉलोअर्स के लिए, दूसरों के लिए जिनको आप मोटिवेट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जब कभी कोई चीज अचीव हो जाए, जब कभी किसी ने कोई अचीव कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए भी मोटिवेशन का जरिया बने, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ, देख लिया हमने। इवन नाउ हाउ कैन यू मोटिवेट अदर्स, सो दैट इज हाउ लीडर्स कैन इंटरेक्ट विद द फॉलोअर्स, लीडर कैन interact with their colleagues, followers, to motivate them, to keep them motivated, so that they should achieve something important, which is important not only for them but also for the organization. और इसके अलावा भी दूसरों के अंदर मोटिवेशन, जिस आपने आपके लिए मैंने आपसे कहा था कि कीप ऑन डूइंग समथिंग, आप दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी यू नीड टू कीप समथिंग डूइंग, एक नई से नई चीज लानी चाहिए उनके अंदर, कि उनके अंदर वो चीजें जिंदा रहे आगे बढ़ने की। मोटिवेशन और परफॉर्मेंस और रिवार्ड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एक मॉडल किसी टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, उसको देखिए क्या हो रहा है कि एक मोटिवेशन इस वर्किंग एनवायरनमेंट में एवरीबॉडी पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दे परफॉर्म बिकॉज देयर आर इंडिविजुअल एबिलिटीज, और फिर उसके अलावा जो उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट होती है वो उसको पुश करती है कि वो परफॉर्म करे, और उस परफॉर्मेंस करने के बाद उसको उसका रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और वो रिवार्ड जो है अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या उससे अच्छा है तो वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है, और सेटिस्फाई हो जाता है या हो जाती है, और फिर वो उसके अंदर एक जील पैदा करती है, रीइंफोर्समेंट पैदा करती है कि वो उस बिहेवियर को रिपीट कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट in a generic term, in a macro level, how can you motivate your employees? And it depends on the good leadership available. If an organization have a good leader, that is a blessing. If the employees, they have a good leader, that is a blessing for them. If those subordinates or followers, they have a good leader, that is blessing for them. So good leadership or good leader is the key to keep your employees motivated. You need to create a culture of trust again in the organization, so that which can trigger this motivation things. You need to encourage risk taking in the organization. You need to foster the ownership. You need to have the goal directed approach, and that is how you can always keep your followers, your employees motivated in the organization. ये चीजें बहुत जरूरी हैं मैनेजर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कि इनको समझा जाए और फिर इसको आपस में इंटीग्रेट करके अप्लाई किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू गेट द रिजल्ट्स. And this is, again, remember, this is a continuous process. It is not a one-time process. Because you have motivated one person, you have motivated once with a pet talk, kind of talk to your colleagues, and that's it. No, tomorrow you have to do it again. Day after tomorrow, you need to do it in a different way too, so that they should keep on moving toward the achieving of the goals. ठीक है? किस तरह ये सारे कॉन्सेप्ट हम फिर अप्लाई कर सकते हैं? इन सारी चीजों को समझना है हमें. You have to recognize these things. You also have to recognize that individual differences, that people are different. You need to match people to their jobs. उसकी क्वालिटी जो है, उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनको उसके टास्क से मैचिंग करना होगा. आपने उनके लिए चैलेंजिंग गोल रखने होंगे. You have to encourage participation. You have to kind of create a reward mechanism कि जो कोई अच्छा काम करेगा उसको उसके मुताबिक रिवार्ड मिलेगा. You need to link this reward with the performance. Not everybody should get the same thing. You need to check for the equity कि बाहर क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं. And don't ignore the money part. Nothing is free basically. हम बड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, अपने कोलीग के साथ भी, कि नहीं हम ये अचीव करेंगे. They are there, but same time money factor is very important. So don't ignore the money part. वो एडम स्मिथ ने भी कहा है ना, The Nature of the Wealth, अपनी जो किताब लिखी थी इकोनॉमिक्स के बारे में, कि everything revolve around the economic factor. So nothing is free. We have to understand those things. So ladies and gentlemen, conditions for leadership motivation. Leadership generates motivation when it increases the numbers and kind of the payoffs. Path to goals is clear and easily traveled when coaching and direction is available.
when the obstacles and roadblocks are removed, the work itself is personally satisfying. तो लीडर्स के लिए ये चीजें जहन में रखना है कि आपने वो जो भी काम ले रहे हैं उसका पे ऑफ का मैकेनिज्म डेवलप रखना है, आपने अपना डायरेक्शन और पाथ और गोल को क्लियर रखना है, और फिर साथ साथ लोगों को, अपने कोलीग्स को, सबॉर्डिनेट्स को मैच कोचिंग करते हुए, उनको बैकअप करते हुए लेके चलना है. सेम टाइम नॉट ओनली कि आपने उनको बैकअप करना है, बल्कि रास्ते में जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसको मिनिमाइज करना है, रिमूव करना है, और फिर ये भी कोशिश करनी है कि हर जो काम कर रहे हैं इसको लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, उनकी अपनी सेटिस्फाइंग के लिए. एंड दैट इज हाउ यू कैन अचीव योर गोल्स, योर पर्सनल गोल्स, योर ऑर्गेनाइजेशन गोल. This is how individual can be successful, your organization can be successful, and you as a leader is going to be successful. Let me ask you two questions. Can pay or money generate motivation? And can pay or money maintain the motivation? उसको समझने के लिए हमें पैसे को समझना है कि पैसा का क्या रोल है. Money as a motivator. जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको नहीं भूलना चाहिए. This is very important aspect. According to Maslow's and Alfred's, pay should prove especially motivational to people who have the strong lower level needs. जो मैस्लो की हमने बेसिक नीड की बात की थी, फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, बेसिक जो 2-3 लेवल बेसिक हमने पढ़े थे. अकॉर्डिंग टू मैस्लो, वो जो लोग लोअर लेवल ऑफ नीड जिनकी स्ट्रांग होती है उसमें पैसा ज्यादा रोल प्ले करता है एज ए मोटिवेशन के. इफ पे हैज द कैपेसिटी टू फुलफिल ए वैरायटी ऑफ नीड्स, देन इट शुड हैव गुड पोटेंशियल एज ए मोटिवेटर. और ये भी देखा गया, जरूरी नहीं है जितना कोई अमीर होता है उतना ही पैसे के लिए वो ज्यादा कोशिश कर रहा होता है. तो पैसा इज यस ए बिग मोटिवेटर, मनी इज यस ए बिग मोटिवेटर, लेकिन हमें एथिक्स और बाकी चीजों को सामने रखते हुए ये भी देखना है कि इसको इतना ज्यादा नहीं उजागर करना चाहिए कि ये वाकया ही सिर्फ यही एक चीज रह जाए और फिर बाकी चीजें खत्म हो जाएं. तो इट विल बी ए फेलियर ऑफ यू एज ए लीडर, एज इन ह्यूमन बीइंग हम सबका फेलियर होगा. ठीक है. तो पैसा, यस, मनी इज ए मोटिवेटर. अब पैसे का क्या रोल है? द वैल्यू देयर सर्विसेज एंड प्लेस हाई वैल्यू टू दम. पीपल डू गिव मनी एज ए वैल्यू, और फिर क्या करते हैं, उसको हाई लेवल देते हैं. और वैसे भी सोसाइटी में देखा गया है, अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि पैसे की बुनियाद पे लोगों को जाना जाता है, जज किया जाता है, पहचाना जाता है. उसकी रिस्पेक्ट पैसे के हिसाब से शायद ज्यादा होगी सोसाइटी में. जबकि हम जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं उसमें हमें बताया गया है कि भाई अगर किसी को उसकी देखना है तो उसकी जो बढ़ाई है, उसकी जो आपके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस है, वो इस वजह से नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी जायदाद है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, बल्कि उसका तकवा है जो उसको किसी से अच्छा या कमतर या ज्यादा बनाता है. बट एनीवे, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. यस, मनी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेटर एंड पीपल डू जज पीपल एंड काइंड ऑफ गिव देम द क्रेडिट कि किस लेवल पे इनको देखा जाता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है पैसे की बुनियाद पे. यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो जो सैलरी उनको मिलती है, जो अवार्ड मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसको देखा जाता है, दे परसीव मनी एज ए सिंबल ऑफ देयर अचीवमेंट्स. और फिर कोई बंदा भी लो पेइंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करना पसंद करता. द इक्विटी थ्योरी आल्सो से कि पीपल डू जज, दे ट्राई टू कंपेयर कि वट एवर आई एम कंट्रीब्यूटिंग एंड हाउ मच आई एम गेटिंग एज कंपेयर टू वट एवर पर्सन A or B, another organization, even the same organization, they are putting and they are getting. तो इसका मतलब है कि ये एक इंपॉर्टेंट मोटिवेटर है. ठीक है ना. और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, और इसकी बेस पे लोग अपनी एबिलिटीज को, अपनी लिमिटेशन को भी देखते हैं कि यार उनकी क्या वर्थ है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू. बट बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट को ये मैं स्लाइड, अगर आपने कुछ मेरे पहले कोर्सेज पढ़े हैं तो उसमें भी दिखाई है, HR में भी दिखाई थी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी दिखाई थी कि when somebody has said this, I quote, when someone say it is not the money, it is the principle, it is the money. ये ज़बानी बातें हैं कि लोग कहते हैं जी पैसा जरूरी नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन इज यस, पैसा इज इंपॉर्टेंट, पैसा इज जरूरी थिंग, राइट? So ladies and gentlemen, while managing the organization,
while leading the group, while leading the organization, while leading the team, you need to understand, yes, money is important and money is a big motivator too, but we need to create a balance so that it should not be the only criteria or motivation factor for the organization, because at the end of the day, if this is the only motivation or motivator, then ultimately we are all going to lose. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ٹوٹل ایک ریوارڈ میکانزم کو سمجھتے ہیں, ایک فریم ورک کو سمجھتے ہیں. ایک آرگنائزیشن کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں. کوالٹی آف ورک از اٹ سیلف ون آسپیکٹ. اگر آرگنائزیشن کے اندر کوالٹی آف ورک اچھی ہے, پرسپشن آف ویلیو آف ورک ہے ادھر, وہاں پہ اچیومنٹ اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ ریلیشن شپ جو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر وہ اچھا ہے, آپ کے باس اچھے ہیں, آپ کے کولیگ اچھے ہیں, تو دے آر گوئنگ ٹو ایکٹ ایز اٹ از گوئنگ ٹو اٹ سیلف ایکٹ ایز اے موٹیویٹر. تو لوگ اس کو بھی اہمیت دیں گے اور وہاں پہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ فیتھفل ہو کے کام کریں گے. اسی طرح ورک لائف بیلنس جو ہوتا ہے آپ آرگنائزیشن کے اندر, جہاں آرگنائزیشن آپ کو سپورٹیو انوائرمنٹ دیتی ہے, جہاں پہ ریلیکس ورک انوائرمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ سیکورٹی آف انکم ہوتی ہے, جہاں پہ سوشل انوائرمنٹ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کے دکھ درد میں آپ کا ادارہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے, دین اٹ سیلف اٹ از آلسو گوئنگ ٹو ہیلپ یو ایز اے گڈ کائنڈ آف motivation factor in your organization. Similarly, inspirations value جو ہے, quality of leadership کیسی ہے, public service values کیا ہیں, promotion of diversity کتنی ہے, reputation of organization کتنی ہے, risk sharing کتنا ہے, یہ چیزیں بھی organization کے اندر آپ کو help کرتی ہیں کہ آپ ایک اچھی environment create کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو motivate رکھتے ہیں. اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر انیبلنگ انوائرمنٹ ہے, جس کے عمل فزیکل انوائرمنٹ اچھے ہیں, اکوپمنٹ اچھے ہیں, اس کے اندر لرننگ اپرچونیٹیز ہے, وہاں پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز آر دیئر, اینڈ یو ہیو دا سیفٹی اور آل دوز گڈ انوائرمنٹ دیئر, اٹ سیلف اٹ از گوئنگ ٹو ایکٹ ایز اے موٹیویشن فیکٹر. Then if you have the future growth opportunity in your organization, if you people know that if we'll join this organization, if we'll stay here, we have this opportunity, ہماری سکسیشن پلاننگ ہے آرگنائزیشن کے اندر, جہاں پہ ہماری آگے ٹریننگ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ترقی بھی ہوگی, آگے بڑھنے کے چانسز بھی ہیں, تو یہ بھی ایک اچھا فیکٹر ہوگا آپ کے امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, آپ کے ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ فیتھفل ہو کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. دین دا ریوارڈ, ٹینجیبل ریوارڈ تھنگ بیسیکلی, کمپیٹیٹو پے ہونی چاہیے, گڈ بینیفٹس ہونے چاہیے, انسینٹیوز ہونے چاہیے, پرفارمنس کے لیے جو ہائی پرفارمنس پہ دیے جاتے ہیں, ریکگنیشن ایوارڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ, فیئرنیس وائل گیونگ دا ریوارڈ. سو آل دوز ریوارڈ شوڈ بی لنک ود دی پرفارمنس. اگر یہ سارا سسٹم ہے تو اٹ کین گیو یور آرگنائزیشن اے کمپریہنسو ایج اوور ادر آرگنائزیشن. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, so looking at organization as it in a total scenario, as a total identity, we need to look at this total reward framework thing basically, where we have to see the environment, we have to see the kind of culture of the organization, where we have to see the type of leadership available there, the type of working environment there, وہ جو empowerment ہے, جو delegation of power ہے, autonomy ہے, learning opportunities ہے, ریوارڈ میکانزم ہے, آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے فیئرنیس جو ہونا چاہیے. اٹ از ناٹ اے پرسنالٹی بیٹ, اٹ از دی ورک یو آر ڈوئنگ, جس کے بیس پہ آپ کو, پرفارمنس کے بیس پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, ریکگنیشن ملتی ہے. اٹ از ناٹ بیکاز یو آر ویری گڈ ود یور باس سو یو ول گیٹ دا ریکگنیشن. نو, اٹ از دی جاب یو آر ڈوئنگ, دیٹ از امپورٹنٹ. اف وی انڈرسٹینڈ دوز تھنگ, our organizations are going to be a learning dynamic organization, and our employees, our colleagues, our followers, they're going to be motivated, and that organization is going to be successful, and that organization is also going to be successful in the future. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں جب میں آپ کوئی بھی اپنے اس لیڈرشپ پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کلوز کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ اور. What are those methods which can motivate our employees? You need to set goals, properly goals. You need to increase this pay for performance concept in your organization. You need to have the improved merit pay system in your organization. You need to recognize people who are doing good job. You need to have the positive reinforcement mechanism in your organization. You need to do the behavior management system. You have to adopt this behavior management system in your organization. بجائے carrot and stick rule کے,
you need to manage people. You need to develop the system. You need to empower your employees. You need to enrich the jobs, so people should take it as an opportunity कि वहाँ से वो सीख लें. You need to create a learning organization, your organization as a learning organization. You need to provide lifetime learning to your people so that they should grow. That is how you can retain people, because in today's organization, it is becoming very difficult to retain good people. आज के HR के जो बड़े बड़े challenges हैं वो क्या हैं? To attract the good people in your organization. आप अट्रैक्ट कर लेते हैं भले किसी अच्छी इंसेंटिव दे के, लेकिन इससे अगला काम उससे इंपॉर्टेंट है कि you need to develop them so that they should work in your organization and become the part of your organization. आपने डेवलप भी कर दिया तो तीसरा स्टेप होता है कि you need to keep them motivated, कि आज वो एक ज़ील के साथ, एक एफर्ट के साथ आए हैं, तो आज एक काम करें तो कल भी करें, परसों भी करें और आने वाले दिनों पे भी इसी तरह करते रहें. तो आपने अपने सिस्टम के अंदर वो मोटिवेशन फैक्टर डालने हैं कि वो कीप ऑन डूइंग गुड जॉब. एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट इज हाउ you need to develop a mechanism that you should retain good people, because once they will get the training from your organization, they will get some position, naturally अगले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन साथ वाले आपके घर के तीसरी कंट्री के अंदर, दूसरे मुल्क शहर के अंदर, तीसरे मुल्क के अंदर लोगों को पता होता है आजकल कि कौन क्या कर रहा है, एंड दे विल बी आफ्टर योर पीपल, योर फॉलोअर, योर कोलीग्स, कि अच्छे लोगों को हर कोई चाहता है. तो आपको ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है कि अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अच्छे लोगों को ट्रेन करना है कि वो आपका हिस्सा बन जाए, अच्छे लोगों को कीप ऑन, यू नीड टू कीप ऑन देम मोटिवेटेड सो दैट दे शुड स्टे इन योर ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड कीप ऑन परफॉर्मिंग. और सबसे ज़्यादा कि आपने वो एक सिस्टम बनाना है फेयरनेस का, कि जिसमें सबको पता हो कि यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, यहाँ पे इज्जत भी है, यहाँ पे फ्रीडम भी है, यहाँ पे लर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पे फेयर हमें जजमेंट भी होती है, अच्छा वो काम करता है उसको अच्छा रिवार्ड भी मिलता है, लोगों को सिखाया भी जाता है, कोई ऐसे को टांगे खींचने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. So that is how your organization can be a successful organization. So ladies and gentlemen, I think I need to stop it here, but you have to remember that being a leader or in this setup of leadership process, we have to understand all those basic behavior aspect जो बहुत important है किसी भी organization को सस्टेन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए. So ladies and gentlemen, I hope you are now confident. The concept of motivation, the concept of leadership, and what is the application of this motivation with the leadership is you have picked those things, and I'm sure that वो लोग जो शायद इस सब्जेक्ट को उन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ जस्ट फॉर फन पार्ट और वो सुनने के लिए इन्होंने देख रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद कोर्स होगा, ये बातें फ़ायदेमंद होंगी कि इन चीज़ों को अगर अप्लाई किया जाए, क्योंकि हम बातें तो बड़ी करते हैं, हम किताबों में बड़े बड़े चीज़ें लिखते हैं, मेरी तरह के लेक्चर भी बहुत देते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बात आती है तो हम भूल जाते हैं कि इन चीज़ों का कुछ रिलेशनशिप है. ठीक है, तो अपने एज ए लीडर आपको इन चीज़ों को सामने रखते हुए, सबको साथ लेते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है. उन गोल्स के अचीवमेंट के ऊपर ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं, बल्कि आपके इंडिविजुअल लोगों के गोल भी अचीव हो रहे हैं, आपके एज ए लीडर के भी गोल अचीव हो रहे हैं, और एज ए होल सबका फायदा हो रहा है. सो दैट इज व्हाट फॉर विच वी आर वर्किंग हियर. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग, एंड आई होप एट द एंड ऑफ डे वी शुड स्टार्ट यूजिंग थिंग इन अवर रियल लाइफ, और उसका फायदा अपने लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड एज होल अपनी कंट्री के लिए इसको लाएंगे, जिससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आगे चलेंगी. आई हैव टू स्टॉप इट हियर. आई होप यू विल कंटिन्यू वर्क हार्ड. टेक केयर. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.